क्या बताना है? फ्रिक्शन का एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा देंगे। चलो फ्रिक्शन निकाल लो। Friction opposes the, what does it opposes? Exercises देखो, that is between the surface in contact with each other. So friction opposes the relative motion. Relative जरूर लिखना, मोशन लिखने से कट जाएगा. Friction opposes the relative motion. Now friction depends on nature of surfaces. See, friction produces heat. ये बात तो सही है. And sprinkling of powder on carom board reduces friction. Sliding friction is so less than the static friction. Second question. 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding friction in decreasing order. तो पहले सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लिखना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम. तो सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन सा होगा? फिर हाँ, तो इसमें सी आंसर करेक्ट है. Alida runs her toy car on dry marble floor. Wet marble floor, newspaper and towel spread on the floor. The force of friction acting on the car on different surfaces in increasing. तो बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे कम फ्रिक्शन किस में होगा? ये सही रहेगा, क्योंकि हम लोग की गाड़ी भी अगर पानी होता है ना तो उसमें फिसल जाती है, स्किड कर जाती है. तो अगर बारिश हो रही तो फिर फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है. Suppose your writing desk is tilted a little. A book kept on it starts sliding down. So the direction of frictional force. मान लीजिए कि अगर राइटिंग डेस्क ऐसी है, ऐसे देखा है ना, स्कूल में होती भी है राइटिंग डेस्क, और इसके ऊपर ऐसे बुक रखी है, और बुक मान लीजिए इसमें इट इज़ ये ऐसे मूव करने लगती है बुक. तो ऐसे केस में बोलो फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो इधर की ओर लगेगा, यहाँ सरफेस पे दिखाना ये फ्रिक्शन फोर्स, और ये मोशन ऐसे लिखना. सो फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. Friction force is opposite to direction of motion. Okay. Show the direction of frictional force. ऐसा ही आपको डायग्राम बनाना होगा वहाँ पर. तो उससे क्या होगा कि आपका आंसर सपोर्टेड हो जाएगा. अब जरा देखो कि you spill a bucket of soapy water on marble floor accidentally. Would it make it easier or more difficult for you to walk on floor? Why? Now, soapy water reduces friction between our feet and reduces friction between our feet and floor. Between our feet and floor. So there are more chances of slipping, as we know that friction helps us. As we know that friction
Now, explain why sportsmen use shoes with spikes. To increase friction. So the sportsmen use shoes with spikes. Shoes with spikes. तो उनके शूज में क्या होता है, मान लीजिए शूज हैं, तो शूज में इसमें बहुत सारे डिम्पल्स ऐसे निकले रहेंगे, तो ऐसे क्या होगा बताओ, बहुत सारी स्पाइक्स निकले रहेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, नाउ इट इंक्रीजेस फ्रिक्शन, बिटवीन सोल एंड जो भी ग्राउंड है, एज इन केस ऑफ देयर इज मडी ग्राउंड, कीचड़ हो या वेट ग्राउंड, then there may be chance of slipping, as sportsman is running fast so he may hurt severely, उसको बहुत तेज चोट लग सकती है। हम लोग तो ऐसे गिरेंगे तो नहीं लगेगी, लेकिन स्पोर्ट्समैन का तो लाइफ ही रिस्क हो जाएगा, उसका कैरियर स्पोर्ट्स पर है। तो इस तरीके से इट इज, ये क्यों होता है, टू रिड्यूस, रिड्यूस लिखते हैं ना, और जिससे इंग्लिश अच्छी आती है तो एलिमिनेट, मतलब पूरा चांस ही खत्म हो गया उसके गिरने का, एलिमिनेट, एलिमिनेट चांस ऑफ स्लिपिंग, ठीक है, एलिमिनेट चांस ऑफ स्लिपिंग, एज देयर मे बी water or mud on playground, so there remains always chance of slipping, so इसलिए sportsmen wear shoes with spikes, तो वहाँ जहाँ कीचड़ होगा वहाँ उनका पैर धंस जाएगा अच्छी तरीके से, वो गिरेंगे नहीं। as playground लाइट आ गई, may be wet at some places, कहीं कहीं पे क्या हो सकता है, places, ये लिख देने से ठीक है, इसलिए वो ऐसा करता है। अब देखिए, Iqbal has to push a lighter box and Seema has to put a similar heavier box on same floor. Who will have to apply a larger force and why? Seema, because हाँ बिल्कुल सही है, फ्रिक्शन डिपेंड्स on mass of object. If mass is more, then the friction is more. If mass is more, then friction is more. So Seema has to apply larger force to drag the box. बॉक्स को खींचने के लिए उसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या स्लाइड द बॉक्स भी लिख सकते हैं। नाउ explain why sliding friction is less than static friction. Now, so static friction है, और why sliding friction is less than, क्योंकि उनके बीच में कुछ बॉन्ड्स बन जाते हैं और इंटरलॉक हो जाती है। तो आपको मालूम है, जब दो सरफेस ऐसे सिर्फ रखी हैं, तो आपके बुक में एक ऐसा डायग्राम बना हुआ है, तो उसकी वजह से जब एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन,
So when once interlocking between surface breaks, जो दो सरफेस हैं, अब आप तो ऊपर फोर्स लगा रहे हो, लेकिन ये जब इंटरलॉक से निकलेगी और ये बॉन्ड टूटेंगे इंटरलॉकिंग, तो इस चीज़ को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक ये मूव नहीं करती तब तक उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो शुरू में तुम जब ये फ्रिक्शनल फोर्स लगाओगे तो जैसे जैसे फोर्स लगाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, एक हाईएस्ट लिमिट तक पहुंच जाएगा, फिर उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद फिर वो नहीं बन पाएंगे, फिर वो चलता ही रहेगा उसके ऊपर। तो फिर उसके बाद रिड्यूस हो जाएगा फ्रिक्शन और एक कांस्टेंट फ्रिक्शन होगा। जब तुम पहली बार अलमीरा मूव करोगे तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन एक बार चलने लग गई तो चलती रहेगी, लेकिन रोक दोगे तो फिर से ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो ये जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और एक बार चल दी तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। सो क्या कहोगे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर बिकॉज देयर इज इंटरलॉकिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। देखो बुक में बनी हुई है इंटरलॉकिंग, तो ऐसे बनी है, ये देखो इंटरलॉकिंग बनाई है, ये देखो है ना लास्ट में। सो इसको कहते हैं कि इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर as the two surfaces at rest get interlocked, so more force is needed to be applied to break interlocking. Two surfaces अगर रुकी हैं तो इंटरलॉक हो जाएंगी, so more force is needed to be applied to break interlocking. Once interlocking is broken, then sliding friction comes in picture, which is lesser than static friction. Once जो इंटरलॉकिंग है is broken, तो जब ये टूट जाएगी then, तो ऐसी स्थिति में देखो इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ गया है, इंटरलॉकिंग इज ब्रोकन बाय समवन हमने नहीं लिखा, ये पैसिव वॉइस है। थर्ड फॉर्म, इंटरलॉकिंग इज ब्रोकन, समबडी ब्रेक्स इंटरलॉकिंग भी लिख सकते हो, या उल्टा करके इंटरलॉकिंग इज ब्रोकन बाय समवन, है कि नहीं? पैसिव वॉइस हो गया कि नहीं? सो वंस इंटरलॉकिंग इज ब्रोकन देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इन एक्शन। Which is always lesser. अगर आप ये इंटरलॉकिंग दिखा दोगे और कहीं इंटरलॉकिंग वर्ड लिख दोगे तो आपका और कोई कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग वर्ड ही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। 9th क्वेश्चन देखिए। Now, give example to show
show that friction is both a friend and foe. So friction as friend. Friction helps us walking. It helps us walking on road. Walking में help करेगा. एक दूसरी चीज, it helps our vehicles to run on road. Run on road. ठीक है. और किस पे काम करता है? ठीक है. Now so friction helps us writing. अगर helps us, तभी तो अगर तुम्हारी पेज खुरदरा हो तभी तो पेन का रोलर मूव करता है. रोलर लगा होता है, वो मूव करता है तो इंक निकलती रहती है. नहीं होता डॉट पेन में एक छोटा सा रोलर रहता है. सो हेल्प्स अस इन राइटिंग. और भी कोई चीज है. फ्रिक्शन हेल्प्स टू लिफ्ट मैच स्टिक विद मैच. उस पर वो घिसती है तभी तो जलती है. फ्रिक्शन helps to lift match stick when it is rubbed on strip of matchbox. Strip of matchbox. बात समझ में आ गई? और कोई भी चीज है बताओ. हाँ. So anything can be properly placed due to friction. और मान लो तेल पड़ा हो तो बार बार फिर जरा सा भी टेढ़ा हो ऑयल खूब तो सब गिर जाएगा. तुमको पहले लेवलिंग ही करनी पड़ेगी. सो फ्रिक्शन होल्ड्स गुड द ऑब्जेक्ट्स एट इट्स प्लेस. हम कोई भी चीज़ रखते हैं, इवन हमारा स्टेपिक कंधे से बार बार बैग ही उतरेगा, फिर हम ऐसे ऐसे चलेंगे. तो हम स्कूल मज़े से जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जा रहे हैं. तो इस तरीके से फ्रिक्शन होल्ड्स आइटम्स एट इट्स प्लेस. तो ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है. We can hang our bags on our shoulders due to friction only. अच्छा, friction as for क्या है? तो फ्रिक्शन जो होता है वो सर किसी मशीनरी को So it causes wear and tear in machines. धीरे धीरे मशीन की अपनी एक लाइफ है. इवन हमारी स्कूटर का जो एक्सेल है वो भी घिस जाता है, फिर बदलना पड़ेगा. टायर बदलने पड़ जाते हैं. Friction causes wear and tear to food. ठीक है. हाँ, तो इस तरीके से wear and tear हो जाएगा इन टायर्स, रनिंग मशीन. और जूते भी नहीं खरीदने पड़ जाते हैं. And shoes. So extra energy is needed to overcome friction. हमें कोई भी चीज़ चलानी हो तो कई बार क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी है. एक्स्ट्रा एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को ओवरकम इन रनिंग पार्ट्स. अगर तुम्हारी साइकिल में कुछ जंग लगा हुआ है तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे उसको चलाने में. In running parts. Friction produces heat during relative motion. Produces. और भी कुछ है क्या? ये सारी चीजें.
Okay. Now, explain why objects move in fluids must have special shape. और कई बार फ्रिक्शन जो होता है वो अनवांटेड होता है इन एयरप्लेन्स. समटाइम्स इट्स जो एरोडायनेमिक पार्ट्स हैं वो उड़ जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, वीक, क्योंकि फ्रिक्शन से ही तो आवाज़ आती है. फ्रिक्शन ज़रूरी नहीं है, हवा में नहीं ज़रूरी, चलने के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन एक बार अगर हवा में हो गए तो सैटेलाइट जैसे बिना आवाज़ के सालों साल, 10,000 साल, 20,000 साल, एक बार हवा में गई वैक्यूम में तो वहाँ उसको कुछ नहीं होने वाला. तो लेकिन हमारे जहाज़ की लाइफ 30 साल है, क्योंकि उसको हवा से डायरेक्टली लड़ाई करनी पड़ती है. तो इस तरीके से फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हमारे एरोडायनेमिक पार्ट्स के टूटने का खतरा बना रहता है, क्योंकि लार्ज फ्रिक्शन होता है ना. इतना फ्रिक्शन है कि आवाज़ भी आती है. Next is why objects moving in fluid must have special shape. So objects moving in fluids have, उनका किस तरीके का शेप होगा, स्ट्रीमलाइंड शेप. जैसे हमने आपको बताया था स्टीमर है, तो स्टीमर का एक अपना शेप होता है कि नहीं, स्ट्रीम लाइन, जिससे कि क्या हो सके कि जो भी करंट्स हैं यहाँ से यहाँ जा सके और यहाँ से यहाँ. अगर सामने की ओर इनका एक स्पेशल शेप है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो शेप है वो इस तरीके का भी हो सकता है, डॉल्फिन की तरीके से. तो ये भी तो एक स्ट्रीम लाइन शेप है. तो इट इज़ स्ट्रीम लाइन, जैसे वहाँ पे डॉल्फिन बनी हो या प्लेटिपस. तो ज़्यादातर मछलियाँ उसी तरीके की हैं, जिससे कि उनको अब वो फ्रिक्शन से लड़ेंगी तो ज़िंदगी कैसे चलेगी उनकी. तो इस तरीके से मूव इन फ्लूइड है स्पेशल स्ट्रीम लाइन से, स्ट्रीम लाइन. जब तुम कभी हाथ से पेपर पेन बनाते हो तो आगे की चीज नुकीली क्यों रखते हो, आगे बड़ा रखो, पीछे नुकीली, उल्टा फेंको पेपर प्लेन. तो अगर आगे बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारा प्लेन नहीं मूव करेगा. स्ट्रीम लाइन के लिए आगे कैसा होना चाहिए, शार्प. हाथ से फेंकते हो कि नहीं पेपर प्लेन, तो क्यों शार्प पर रखते हो, जिसका जितना शार्प होगा उतनी तेजी से करेगा. कोई भी चीज़ फेंकने वाली चीज़ होती है आगे नुकीली होती है कि नहीं, तो वो क्यों ऐसा है, यही स्ट्रीम लाइन शेप है कि आगे से उसका फ्रिक्शन है. और पेपर को या कार्डबोर्ड को ऐसे ले जाओ तो न्यूज़पेपर को तो कितना ज़्यादा हवा लगती है. तो इस तरीके से क्या होता है कि स्ट्रीम लाइन से विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन टू लार्ज एक्सटेंट, विच रिड्यूसेस, इसको कह सकते हैं फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, लेकिन जो पानी में है उसे वाटर ड्रैग भी बोल सकते हो. ड्रैग भी एक फ्रिक्शन ही है पानी में. तो विच रिड्यूसेस, ना याद आए तो फ्रिक्शन ही लिख देना, या वाटर ड्रैग, वाटर ड्रैग. एंड ये जो वाटर बॉडीज होती हैं तो वो क्या हो सकती हैं, एंड स्टीमर्स, शिप्स, सबमरीन, पनडुब्बी कैन मूव इजीली, वो आसानी से चल सकते हैं. इस तरीके से ये होता है. ठीक है, अब जरा देखें कि कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे कर लें जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के हैं, जैसा कि रियाज बता रहे हैं. याद क्या दिए गए सर 3 केस स्टडी है, हैं? 3 केस स्टडी है. किसमें से सर एक फ्रिक्शन में से आएगा, इसमें से ही आएगी. और बताओ किसमें. और सर ड्रॉप प्रोडक्शन से भी आएगी, हाँ? ड्रॉप प्रोडक्शन वाला. सब फ्रिक्शन से कैसे फ्रिक्शन से आएगी ना, इसका बताना. चलो
pressure. Now, देखो Class 8 friction case study. Now, now question number 1. देखो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट इफ यू रब योर, ये सब चीज तुम जानते हो, ये जो लिख रहा है तो वार्मर हो जाता है, स्टॉप हो जाएगा, टाइम स्किपिंग, वही सब लिखा है जो बुक में है। अब इसकी केस स्टडी पर आते हैं कि व्हेन डज फ्रिक्शन अराइज, तो फ्रिक्शन कब अराइज होता है? व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन between two objects, then friction arises. लिखो इस चीज को कि when there is relative motion between two objects, then friction arises. Okay. Now, when there is relative motion between two objects, then friction arises. Second देखो, why should we apply oil on the hinges of door? जहाँ डोर मूव करता है वहाँ हिंज होते हैं, तो उसमें कभी कभी आवाज आने लगती है, तो वहाँ तेल क्यों डालते हैं? To reduce friction. Gymnast apply some coarse substance on the hand. तो वो हाथ में, जिम्नास्ट होते हैं हाथ के बल पे उछल गए फिर उधर हो गए, तो हाथ में कुछ लगाते हैं, कभी ग्रिप करना भी पड़ता है, तो कुछ न कुछ वो रेत लगा लेते हैं कि पसीना ना आए। तो ऐसा वे क्यों करते हैं? टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड दे वुड हैव ए बेटर ग्रिप। जो भी वो ऑब्जेक्ट पकड़े सेकंड्स के लिए पकड़ते हैं, लेकिन वो छूट गया तो जान चली जाएगी। पकड़ के जैसे नहीं होते सर्कस में, इससे उसका हाथ पकड़ा, उससे उसका हाथ, वो तो जिम्नेजियम ही है कि नहीं। So they apply sand dust on their hands. ऐसा वे करते हैं, तो मयंक क्या वो रिड्यूस करने के लिए करते हैं? टू इंक्रीज फ्रिक्शन, टू इंक्रीज फ्रिक्शन. In this case, they will have better grip on the objects holding. In this case, they will have better grip on the objects holding. Even वो जो गोविंदा होते हैं मट्टी फोड़ने वाले के ऊपर एक पिरामिड बनाते हैं ना, तो पैरों में भी रेत लगा लेते हैं, ऐसा ना हो कि किसी की शर्ट में फिसल जाए, तो खूब रेत लगा लेते हैं यहाँ पे, या बालू खूब लेंगे पूरी भर यहाँ लगा लेंगे, तो इससे क्या होगा? समझ आ गया? Explain why sportsmen use shoes with spikes to increase friction and avoid slipping. To increase friction and avoid slipping during running, and avoid slipping
during running. Now, अब देखिए तो तुमने क्या बताया? क्रिटिकल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग, है क्रिटिकल थिंकिंग टाइप से। Class 8 critical thinking questions on friction. Sure. Odds question. Critical thinking. Odds question. देखो कुछ है. Right. One harm. Why kabaddi players rub their hands with soil? What happens when there is friction between chalk and blackboard? The chalk will not run on blackboard. Chalk और उसके बीच में friction होता है तभी तो chalk घिसती जाती है. अच्छा, the sole of shoes. What happens if the floor on we walk is frictionless? When we will slip on it. How does the friction get affected by the nature of surface? So, if surface is rough, then friction is more. If surface is smooth, then friction is less. What is drag? Drag का क्या मतलब होता है? Drag Friction, I don't know. drag का मतलब देखो, drag और ने बुक में दिया है? दिमाग जरा। The frictional force exerted by fluids is called देखो, drag. the frictional force अच्छा, जैसे हवा में कोई चीज चल रही है एरोप्लेन, तो तब भी क्या ड्रैग रहेगा? कि तब नहीं रहेगा, तब फ्रिक्शन रहेगा। हाँ? ड्रैग रहेगा क्योंकि फ्लूइड है ना। तो व्हाट इज ड्रैग? देखो बैठ गए ना, बता नहीं पा रहा। हाँ, तुम बताओ। तुम कैसे बता पाओगे? वही नहीं बता पा रहा। हाँ, So the frictional force applied on fluid is called drag. द फ्रिक्शनल फोर्स, जबकि यहाँ लिखा भी है, अलग अलग बैठा करो। द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। जबकि अभी इसने आज्ञा ने बताया भी कि 153 पेज पे, तुमने वो भी नहीं देखा होगा। बात में मशगूल थे क्या? हैं? कि और किसी खुमारी में थे? अब बताओ, फिर से रिपीट करो। हाँ, Friction force applied on fluid is called drag. वो बोले तो इग्नोर करो उसकी बात को, एक कान बंद कर लो, समझ में आया? वो बोलता रहता लगातार, नहीं तो पैसा देते हो तुम यहाँ पढ़ने का, वो तो बोलेगा। वो रिकॉर्ड बना रहा है कि 99 टाइम्स जीरो आए, 100 टाइम्स आए, तो मम्मी को दिखाएगा ये। तुम्हें कौन सा रिकॉर्ड बनाना है? ठीक है ना। ये तो ड्राइव हो गया। इन विच डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट? निखिल, इन विच डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट? The opposite of the motion. Opposite to direction of Motion. What is sliding friction? R पे। हाँ बोलिए। So when an object slides over the surface of another body is called sliding. Then the friction acting on it. Is called sliding. What is static friction? हाँ, When an object is in rest, the object will interlock and the other object is called. and interlock. During that time, if force is applied, then a friction opposes any motion, which is called static friction. Repeat करो, Mayank. So, when the object is at rest, it gets interlocked with the irregularities, and when motion applied, Force is applied. when the force is applied to get the object in motion, Object motion to नहीं, but object does not move
एट दैट टाइम वॉट एवर फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन इट, भाई कई बार ऐसा होता है कि आप चलाना चाहते हो फोर्स लगा के लेकिन नहीं चलता, तो उस समय उस पर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाएगा। रिपीट करिए। When one object is resting over another object, When one object is resting over another object and the interlocking, then the surface get interlocked. then the surface get interlocked. During that time, if force is applied, During that time, the force is applied. if force is applied, If force is applied, then it is. then also object does not move. Then also object does not move. In this case, the friction acting on it opposite to direction of applied force is called static friction. Repeat करो। When the two objects are in rest, they get interlocked. Surface get interlocked. Surface get interlocked. When the force is applied, the object doesn't move. During at that time, friction acting on it is called. Srishti, repeat करो। Static friction is known as two surfaces that interlock. When force is applied, interlocking is broken. ब्लॉक नहीं करना है, तब तो स्लाइडिंग हो जाएगा। हाँ बोलो, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? So when one object is pressed on another object, then the surface get interlocked. Then force. आगे बताओ। Surface get interlocked, आगे बोलो। दिया बोलो। जिसके लिए any friction force is applied on the object will not move. In this case, this is known as static friction. ये कितना अच्छा बताती है। सो देखो, when one object rests on other, then due to irregularities, these surfaces get interlocked, ठीक है, and object does not move even though force is applied. This is due to static friction. पूरा कितना शब्दों का आप गठन देखिए कितना अच्छा बनाया। And object does not move, क्योंकि लॉक हो गई due to irregularities, the surface get locked, and object does not move even though force is applied. force के अप्लाई करने पर, बल के आरोपित करने पर भी वे वस्तुएं एक दूसरे के रिलेटिव मुसापेक्ष गति नहीं करती, ऐसा उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थितिज घर्षण के कारण होता है। सो एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, सेंटेंस पूरा करो। Does not move when the Even though the force is applied. और फिर इसके आगे क्या लिखें? Even though there is on it Force is applied. It is due to static friction. static friction. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब इसके आगे हम फ्रिक्शन पर और कुछ क्वेश्चन होगा तो आपको भेज भी देंगे और अगला चैप्टर बताइए। इसके भी पहले फोर्स है क्या कि और कोई है? फोर्स के क्वेश्चन आंसर देखो, चलो फोर्स एंड प्रेशर निकालिए। कल 9 बजे से क्लास होगी आपकी। 9 से 11 होगी 2 बजे, उसमें हम सारे आपके चले और कल लेके आना किसमें केस स्टडी है, जो भी आपकी मार्किंग स्कीम है चाहे भेज देना ग्रुप में तो मुझे पता चल जाएगा। चलिए 9
फर्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव 2 एग्जांपल each of situation in which you push or pull the change of force and pressure. Force and तो दैट इज पुल। देखो पुल क्या कर सकते हो? Open and close. हाँ, और ओपनिंग डोर और या ओपनिंग ड्रॉर भी होता है ना, Yes, sir. We need to pull it. ड्रॉर भी पुल इट। और कुछ पुल करते हो? ड्यूरिंग टग ऑफ वार वी पुल द रोप। ड्यूरिंग टग ऑफ वार ये रस्सा कसी वी पुल द रोप। अब पुश देखो, Sir, to push. ठीक है? तो टू क्लोज द ड्रॉर वी पुश इट। हाँ, टू मूव ए वुडन अलमीरा हम खींचते तो है नहीं, ठीक है? टू मूव वुडन अलमीरा वी पुश इट। और सेकंड क्या हो गया? टू क्लोज द ड्रॉर we push it. Now, give 2 example of situation in which applied force causes a change in shape of object. ऐसा कब? हाँ, when we need do So when we stretch the rubber band, its shape changes. its shape changes. Then when we play with clay, it shape changes. ये भी बात सही है। Squeezing plastic bottle. हाँ, when rubber band is stretched, its shape Changes. Sir, squeezing smiley ball. कई बार स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कंप्रेस करें, स्ट्रेच करें, its shape changes. Fill in the blanks in the following sentences. So, to draw water from a well, we have to Pull. Okay. So, pull the rope. Second देखो, a charged body अट्रैक्ट करती है, ठीक है? कई बार तुम लोगों ने कॉम्ब वाला लिखा है, जैसे कॉम्ब बाल में लगाते हो, Yes, sir. पेपर अट्रैक्ट हो जाता है। Yes, पेपर sir. तो चार्ज नहीं होते हैं, Sir, लेकिन कॉम्ब तो चार्ज हो जाता है, तो उससे वो अट्रैक्ट करेगा। Attracts. Now, to move a loaded trolley, पुश ही करेंगे अपनी ओर, तो क्या ट्रॉली खींचेंगे उसको, है ना? लोडेड ट्रॉली को धक्का दिया था जिससे कि स्टार्ट हो जाए इंजन, तो पुश। Sir, हमें तो push, either push or pull. अच्छा, ठीक है। द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट डिपेंड करेगा। चेक कर लेते हैं, ऐसी बात है तो कि क्या होगा आंसर, आप बोल रहे हैं, सर वो पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है। देख लेते हैं। क्लास 8 फोर्स एंड प्रेशर एक्सरसाइज सॉल्यूशन। एग्जाम का मामला है तो सही चीज होनी चाहिए। नाउ सेकंड देखिए, सेकंड एक थर्ड है, तो थर्ड में इन्होंने कहा है कि पुश। पुश करेंगे। लेकिन सर हमारे सर पुश और पुल लोडेड ट्रॉली को क्या हमने Either push or pull. बहुत मेहनत का काम है, अपनी तरफ हम क्यों खींचे? लिखा दिया तो लिख देना, जब सर लिखा है तो लिख देना, और जिसके सर ने नहीं लिखाया वो पुश करे। अब जरा देखो फोर्थ क्वेश्चन। An archer stretches her bow while taking aim to target. Then she releases the arrow, which begins to move towards the target. So, based on this information, fill in the gaps. देखिए, एक तीरंदाज
तीर को कमान पर चढ़ाता है और फिर कमान से वो तीर को छोड़ देता है, तो इस स्थितियों में क्या क्या हुआ है? शेप चेंज हो गई। ठीक है, अब देखो, टू स्ट्रेच द बो, द आर्चर, ये बो है और ये क्या है? एरो। समझ में आ गई कि नहीं? ये कमान है और ये क्या है? तीर है। ये संस्कृत में इशु है, ये आशा है। समझ में आ गई ना? अब जगह देखो कि अब हम ये देखेंगे क्या क्या हो रहा है। पहले बताओ, टू स्ट्रेच द बो, द आर्चर अप्लाइज ए फोर्स दैट कॉजेज ए चेंज इन इट्स शेप। Second is the force applied by archer to stretch the bow is an example of ये बात सही है, muscular force। सी देखो, the type of force responsible for a change in state of motion। क्योंकि कांटेक्ट फोर्स है और दूसरा क्या है? नॉन कांटेक्ट है। ये नॉन कांटेक्ट लिखा है ना आपके, वरना उसे एट ए डिस्टेंस फोर्स भी कहते हैं। तो चलिए, तो ये तो कांटेक्ट हो गया। डी देखिए, while the arrow moves towards its target, the force acting on it, इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? क्योंकि जैसे तीर जा रहा है तो तीर जाते जाते ये एक इस पे फ्रिक्शन भी होगा और धीरे धीरे नीचे भी गिरेगा ना सर। तो ग्रेविटी लिखा हुआ होगा, इसमें ग्रेविटी भी है और देखो इन्होंने फ्रिक्शन लिख दिया, तो फ्रिक्शन लिखो, ग्रेविटी और फ्रिक्शन। लेकिन हवा में जो काम करता है उसे ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। तो एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, एक्सर्टिंग फोर्स, और दूसरा क्या कहा गया है कि ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, और इफेक्ट ऑफ फोर्स भी लिखना है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो तीन चीज पूछी गई है कि फोर्स लगा कौन रहा है, लग किस पे रहा है और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो पहला चीज देखो, स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट। एजेंट फिंगर, एजेंट का फिंगर। तो एजेंट क्या हो गई? पीस ऑफ लेमन सर, पीस ऑफ लेमन सर। ये बात तो सही है। और सर चेंज इन शेप। वो एजेंट है, दैट इज फिंगर्स ना, और ऑब्जेक्ट तो पीस ऑफ लेमन। पीस ऑफ लेमन। ठीक है, और इससे क्या हुआ? चेंज इन शेप। चेंज इन शेप। नेक्स्ट देखो, कि टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए सर एजेंट टूथपेस्ट, फिंगर, इसमें भी सर एजेंट फिंगर होगा। और सर इसमें ट्यूब, हाँ, टूथपेस्ट ट्यूब, और सर चेंज इन शेप। change in shape. Next is a load suspended from a spring while its other end is on a hook fixed to a सर स्प्रिंग है। तो सर एजेंट है, एजेंट सर एजेंट और ये है स्प्रिंग। और इस पर लोड है तो ये स्विच ये एक्सटेंड हो गई, तो एजेंट क्या है? लोड सस्पेंडेड। और ये काम किस पर कर रहा है? स्प्रिंग बैलेंस। और इसका क्या हो गया? चेंज। देखो, चेंज इन शेप भी लिख सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो। वैसे तुम्हें शेप ठीक लगता है तो शेप। नाउ एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर ए बार एट ए सर्टेन, कोई एक बार है तो हाई जंप लगा के उसको क्रॉस कर रहा है, तो एथलीट सर ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तो इसमें क्या हो जाएगा? सर ऑब्जेक्ट है एथलीट।
एजेंट इज मसल्स ऑफ एथलीट, ऑब्जेक्ट इज एथलीट हिमसेल्फ। तो वो मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसको क्या लगा रहा है? मसल्स ऑफ एथलीट, और खुद ही वो ऑब्जेक्ट भी है, एथलीट हिमसेल्फ। The changing state of motion. सेल्फ, और ऐसा करके वो जमीन पर है, अपनी स्टेट है, तो पहले दौड़ रहा है, फिर हाई जंप कर रहा है, तो इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई कि नहीं? तो दैट इज स्टेट ऑफ मोशन बदल गई। अब देखो, नेक्स्ट इज a blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering? The change in motion. कौन सा कूलर? Now, blacksmith आयरन पे मारता है, हॉट आयरन पे मारेगा, force affect the piece of iron, change in its shape. कैसे अफेक्ट होगा उस आयरन पीस पे, हॉट आयरन पीस पे? That is, सबसे रिक्वायर्ड टू में मूल हाँ, तो change in shape of hot iron piece takes place. चलिए, an inflated balloon was pressed against a wall after it went in rubbed to synthetic cloth. It was found balloon sticks on wall. What force might be responsible? That is electrostatic force. क्योंकि ये रब किया गया सिंथेटिक क्लॉथ पे, तो क्या इस पर चार्ज आ गया है? यस सर, और हम जानते हैं कि चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। इससे ऐसा तुमने कभी किया है? बैलून को सर पे सूखे वाल पर रखो तो चिपक जाता है। तो 8 means the forces acting on a plastic bucket containing water held above ground. So discuss why the forces acting on bucket do not bring a change in its state of motion. तो एक बकेट है, अब बकेट को तुमने क्या किया है? बोलो, पानी में भर लिया है, और इसको तुम हाथ से क्या कर रहे हो? उठा रहे हो, तो ऊपर की ओर क्या फोर्स? भाई आप इसको फोर्स लगा रहे हो, नीचे की तरफ ठीक है ना? ऐसे आपने फोर्स लगा दिया, अब जरा देखो, इसके बाद अब नीचे की ओर क्या लग रहा है? एक हो गया ऊपर की ओर अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, अप्लाइड फोर्स है, मस्कुलर फोर्स। और नीचे की ओर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या लिखेंगे? The muscular force acts upward and gravitational force acts downward. Muscular force acts upward on bucket, ये सब बकेट पे ही लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स acts downward on bucket. तो दिव्या, ये बकेट क्यों नहीं मूव की? As both forces are equal in magnitude and opposite in direction, so they will cancel each other. हाँ, as both forces are equal in and opposite in direction, so no change in the state of motion. तो इसलिए इसका स्टेट चेंज नहीं होगा एंड बकेट विल बी एट रेस्ट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यस सर। एंड
टाइम रखो। बहुत कड़ी बात